Hello students, welcome to today's lecture from Unit 3 Chapter 1 Listening Skills under your English Language and Communication Skills Level 1 course. By the end of this session, you will be able to समझ पाएंगे what are listening skills और क्यों ये business communication में important है। आप जानेंगे the different stages of listening, यानी जब हम सुनते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होता है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग, जैसे एक्टिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग एटसेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम रिकॉग्नाइज करेंगे बैरियर्स टू लिसनिंग, यानी सुनने में क्या प्रॉब्लम्स होती है और उनको कैसे ओवरकम करें। लास्टली, वील डिस्कस पुअर लिसनिंग हैबिट्स और वर्क प्लेस में उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टू स्टार्ट विथ व्हाट इज लिसनिंग। Listening is one of the 4 basic language skills: reading, writing, speaking and listening. But listening is not just hearing. Hearing is passive. Listening is active. It means paying attention and understanding what is being said. जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तभी आप उसका करेक्ट मीनिंग समझ पाते हैं। In personal life, it helps build relationships. In class, it helps you understand concepts better. And in the workplace, listening is very important for team communication between employees and even with managers. So remember, good listening equals better understanding equals stronger communication. Question: what do you mean by listening skills or effective listening? And what's its role in business communication? Let's begin. Listening skills का मतलब क्या है? Listening means not just hearing, but understanding the complete message, including tone, feeling, and body language. Effective listening का मतलब होता है attention के साथ सुनना, बिना इंटरप्ट किए, ताकि दूसरे की बात को completely समझा जा सके। थॉमस गॉर्डन एंड जूडिथ गॉर्डन कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग वर्क्स ओनली इफ यू जेन्युइनली हियर एंड एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। यानी सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी जरूरी है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स डिस्कस सम की पॉइंट्स। 1. बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। लिसनिंग से हमें सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि उनका इंटेंशन और इमोशन भी समझ में आता है। दिस हेल्प्स इन पर्सनल टास्क्स एंड टीम वर्क। 2. इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। जब लोग एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं तो आइडियाज फ्रीली फ्लो करते हैं। टीम कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं एंड वर्क एनवायरनमेंट बिकम्स पीसफुल। 3. saves time and money. गलत सुनने से गलतियां होती है। Listening clearly means less mistakes, and that saves time and money. Every task gets done faster and better. 4. problem solving. Managers जो अच्छे listeners होते हैं, वो problems को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। They can gather the right information and take better decisions. 5. कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कस्टमर की बात को सीरियसली सुनते हो तो उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है। That builds trust and loyalty and helps improve your product or service. 6. boosts motivation. जब बॉसेस अपने एम्प्लॉयीज को सुनते हैं, उनकी वैल्यू फील होती है। This motivates employees and they give their best to the job. 7. enables better negotiation and conflict resolution. Listening is essential during negotiations, whether it's about contracts, salaries, or resolving disputes. Understanding the other party's perspective leads to better outcomes. 8. builds trust and respect. When leaders actively listen to their teams, it reflects respect and concern. This, in turn, helps earn the trust and loyalty of employees.
क्वेश्चन: द लिसनिंग प्रोसेस यानी सुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? लेट्स गेट स्टार्टेड। लिसनिंग सिर्फ एक कण से सुनने का काम नहीं है, इट्स एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। जब आप किसी मैसेज को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, याद रखते हो, जांच करते हो, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। द लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, रिसीविंग स्टेज। सबसे पहला स्टेज है सुनना और ध्यान देना। आपके आसपास बैकग्राउंड नॉइज हो सकती है, जैसे लोगों की बातें, ट्रैफिक साउंड्स एटसेट्रा। गुड लिसनर्स क्या करते हैं? They filter out distractions and focus on the speaker. Second, understanding stage. सुनने के बाद सेकंड स्टेप है मैसेज को प्रोसेस और इंटरप्रेट करना। यहां दिक्कत होती है जब लैंग्वेज या एक्सपीरियंस डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई वर्ड का मतलब अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। So, it's important to confirm, did I understand this correctly? Third, remembering stage. Listening and memory closely connected होते हैं। अगर आप किसी बात को याद नहीं रख पाए, तो हो सकता है आपने प्रॉपरली सुना ही नहीं हो। Use associations यानी पुराने एक्सपीरियंसेस से लिंक करो, that helps you remember better. Fourth, evaluating stage. ये स्टेज में आप डिसाइड करते हो क्या स्पीकर की बात सही है, क्या आप अग्री करते हो या नहीं। आप एनालिसिस करते हो और फिर एक जजमेंट फॉर्म करते हो। बट रिमेंबर, इवैल्यूएशन तभी सही होगा जब आपने मैसेज को पूरी तरह समझा हो। रिस्पॉन्डिंग स्टेज, फीडबैक। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो लास्ट स्टेप होता है रिस्पॉन्स देना। इस स्टेज में लिसनर अपनी फीडबैक देता है। ये हो सकता है वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल मतलब सवाल पूछना, अपनी राय देना या फिर सिंपल थम बोलना। नॉन वर्बल मतलब सर हिलाना, नॉडिंग, आंखों में कांटेक्ट बनाना या हाथ के जेस्चर्स दिखाना। स्पीकर इस फीडबैक को उसे करता है ये समझने के लिए कि क्या उसकी बात समझ में आई या नहीं, और उसके हिसाब से अपनी बात को बदलने या आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट आईएस टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स की, यानी सुनने के अलग अलग तरीके। एक्टिव लिसनिंग। इसमें आप पूरी तरह से फोकस करते हो, समझते हो, जवाब देते हो और बाद में याद भी रखते हो। एक्टिव लिसनर हमेशा अटेंटिव होता है और अपनी कमिटमेंट दिखता है। ये स्किल लीडरशिप और करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव लिसनिंग। यहां लिसनर सिर्फ सुनता है पर ध्यान नहीं देता। वो डिस्ट्रैक्टेड होता है या अपने ख्यालों में होता है। मतलब बात तो सुन रहा है लेकिन जेन्युइनली एंगेज नहीं हो रहा। बियास्ड लिसनिंग। इस टाइप में लिसनर सिर्फ वही सुनता है जो उससे पसंद हो या जो उसकी सोच से मैच करता हो। इस वजह से वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देता है या गलत समझ लेता है। क्रिटिकल लिसनिंग। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है जहां आप मैसेज को एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो और अपनी ओपिनियन बनते हो। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये स्किल बहुत यूजफुल होती है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इस लिसनिंग में आप पूरी बात को समझने की कोशिश करते हो, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी या आइडियाज। ये टैब इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी नए टॉपिक को समझना चाहते हो। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ये सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें आप अलग अलग साउंड्स, टोन्स या एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करते हो। इसे पता चलता है स्पीकर का मूड, अर्जेंसी या इंटेंशन क्या है। तो दोस्तों, ये द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स जो आपको हर सिचुएशन में हेल्प करेंगे बेटर कम्युनिकेशन के लिए। डीप लिसनिंग।
डीप लिसनिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इमोशंस, फीलिंग्स और मोटिवेशंस को समझना होता है। ये लिसनिंग एम्पैथी डेवलप करती है और हमारे रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनती है। डायलॉजिक लिसनिंग। इस टाइप में दोनों लोग ओपन डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ता है और कॉन्वर्सेशंस को मीनिंगफुल बनाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग? सजेस्ट प्रिंसिपल्स टू ओवरकम दीज बैरियर्स। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। एनवायरनमेंटल बैरियर्स जैसे लाउड नॉइज, बुरा लाइट या अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, ये सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिजिकल बैरियर्स, थकान, इलनेस या बॉडी पेन भी फोकस को कमजोर कर देते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी या मूड चेंजेस सुनने की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। इनअटेंटिवनेस, स्पीकर के अपीयरेंस या इर्रेलेवेंट चीजों पे ध्यान देना असली मैसेज से अटेंशन हटा देता है। इंटरप्शंस, बात बीच में रोकना या रोक जाना कम्युनिकेशन का फ्लो तोड़ता है। प्रेजुडिस, अगर हम पहले से किसी की बैकग्राउंड या ओपिनियन के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं तो हम उनकी बात नहीं सुन पाते। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर टॉपिक बोरिंग हो तो लिसनर मेंटली ड्रिफ्ट कर जाता है और इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाती है। जजिंग द स्पीकर, स्पीकर की इंटेलिजेंस या क्रेडिबिलिटी के बारे में जल्दी डिसीजन ले लेना उनकी बात को इग्नोर करने का रीजन बन सकता है। नॉइज, सबसे कॉमन बैरियर है बैकग्राउंड नॉइज। जब हम टेलीफोन या वर्चुअल मीटिंग्स में बात करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज फोकस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसे मैसेज क्लियरली समझ नहीं आता और कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड हो सकता है। क्लोज्ड माइंडसेट, अगर हम अपनी सोच को रिजिड रखते हैं या दूसरे के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो इफेक्टिव लिसनिंग पॉसिबल नहीं होता। ओपन माइंड होना जरूरी है ताकि हम डाइवर्स ओपिनियंस समझ सके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग जो बैरियर्स को दूर करने में हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, स्पीकर को अपनी बात पूरी करने दो, बीच में मत रोकना। कॉन्संट्रेट फुली, अपना पूरा ध्यान मैसेज पार लगाओ, मल्टीटास्किंग मत करो और अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकने दो। एनकरेज द स्पीकर, नॉडिंग जैसे पॉजिटिव जेस्चर्स दो या छोटे वर्बल क्यूज दो जैसे आई सी या गो ऑन। इसे स्पीकर को पता चलता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हो। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, फोन चेक करना, चीजें छेड़ना या बैकग्राउंड नॉइज से बचना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, इन्हें अवॉइड करो। बी ओपन माइंडेड, स्पीकर के ओपिनियंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करो, चाहे वो आपके थॉट्स से अलग हो। बी पेशेंट, स्पीकर को पूरा टाइम दो अपनी बात समझाने के लिए। जल्दबाजी मत करो। स्टे ऑब्जेक्टिव, अपनी पर्सनल फीलिंग्स या बियासेस को साइड में रखकर बात को समझो। पे अटेंशन टू टोन एंड वॉल्यूम, स्पीकर का टोन और वॉल्यूम इमोशंस दिखता है, इन्हें समझना जरूरी है। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, ये सब वर्बल बातों से ज्यादा कुछ कह सकते हैं। फोकस ऑन कंटेंट नॉट डिलीवरी स्टाइल, अगर स्पीकर का स्टाइल थोड़ा डल या ऑकवर्ड हो तब भी उनका एक्चुअल मैसेज पे ध्यान दो, डिलीवरी स्टाइल पे नहीं। Question 5. What is poor listening skills in effective listening? Or define poor listening. Also mention the effects of ineffective listening at the workplace. जब कोई इंसान कम्युनिकेशन में प्रॉपरली सुन नहीं पता या समझ नहीं पता
उससे पुअर लिसनिंग कहते हैं। डेफिनेशन। पुअर लिसनिंग का मतलब है एक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव, समझना और इंटरप्रेट ना कर पाना। बहुत लोग होते ही है जो सुनते तो है पर उनका दिमाग कहीं और होता है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। इनफेक्टिव लिसनिंग पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत नुकसान करता है। कुछ लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, कुछ सिलेक्टिव सुनते हैं और कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे हैबिट्स से कम्युनिकेशन फेल होती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कॉमन हैबिट्स ऑफ पुअर लिसनर्स। इनअटेंटिवनेस, आसान से डिस्ट्रैक्ट हो जाना या कॉन्वर्सेशन से मेंटली दूर हो जाना, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना। फेकिंग अटेंशन, फेक करना कि सुन रहे हैं जबकि दिमाग कहीं और होता है। इसे गलत इंप्रेशन बनता है और इंपॉर्टेंट बातें मिस हो सकती है। कन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही सुनना जो उनके बिलीफ को सपोर्ट करता है, बाकी इग्नोर करना। इसे पुअर जजमेंट होता है। अवॉइडिंग डिफिकल्ट और अनइंटरेस्टिंग कंटेंट, जब टॉपिक कॉम्प्लेक्स या बोरिंग लगता है तो ट्यून आउट करना। जरूरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। इंटरप्टिंग, स्पीकर को बीच में रोकना या कट करना, जिसे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और कंफ्यूजन बढ़ता है। हियरिंग ओनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड, अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही सुनना और जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको इग्नोर करना। ये मिसकम्युनिकेशन को बढ़वा देता है। एडिशनल बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। फोकसिंग ऑन अपीयरेंस ओवर कंटेंट, कभी कभी हम स्पीकर के लुक्स या बॉडी लैंग्वेज पे इतना फोकस करते हैं कि उनकी बात सुनना मिस कर देते हैं। इसे असली मीनिंग समझ नहीं आता, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बीइंग डिफेंसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव, ऐसे लोग होते हैं जो सुनते नहीं, बस क्रिटिसाइज करने या आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहते हैं। इसे एनवायरनमेंट हॉस्टाइल बन जाता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इफेक्ट्स ऑफ पुअर लिसनिंग एट वर्क प्लेस। इंक्रीज्ड वर्क प्लेस स्ट्रेस, पुअर लिसनिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन बढ़ता है। ये टेंशन और फ्रस्ट्रेशन लाता है, जिससे वर्क प्लेस का मोरल और एफिशिएंसी दोनों गिरते हैं। अनमेट एक्सपेक्टेशंस, जब सही से नहीं सुना जाता, डेडलाइंस मिस होती है, मैनेजर्स इंपॉर्टेंट इन्फो ओवरलुक करते हैं और अपॉइंटमेंट्स भी मिस हो सकती है। इसे काम काफी अफेक्ट होता है। रिलेशनल ब्रेकडाउन्स, पुअर लिसनिंग से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इग्नोर्ड फील करने का इमोशन बढ़ता है। ये रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है, चाहे वो कोलीग्स हो, बॉसेस या क्लाइंट्स। लो मोरल एंड मोटिवेशन, जो एम्प्लॉयज बार बार इनइफेक्टिव लिसनिंग की वजह से फेलियर्स फेस करते हैं, वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे होता है। डिसैटिस्फाइड क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की फीडबैक अगर नहीं सुना गया या डिटेल्स मिस हुई तो क्लाइंट डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। ये बिजनेस लॉस तक ले जा सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इफेक्टिव लिसनिंग हर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। पुअर लिसनिंग प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स दोनों को हर्ट करता है। इसलिए अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हेल्थी और सक्सेसफुल वर्क प्लेस बना सके। Here are very short answers to your questions collectively. Question number 1, difference between good listener and poor listener. Good listener maintains eye contact, gives prompt feedback. Poor listener rarely makes eye contact, gives no or unclear feedback.
Question number 2. Explain active listening. Paying full attention by concentrating, engaging, and absorbing what is said shows care and commitment. Question number 3. Meaning of listening skills. Ability to accurately receive and interpret messages, including body language, essential for effective communication. Question number 4. What is emphatic listening? Listening deeply to understand emotions and viewpoints without judgment, showing empathy. Question number 5. Listening as an interrelated process. Listening connects with speaking, reading, and writing to build comprehension and language skills. Question number 6. Explain any two barriers of effective listening. 1. Physical barriers, illness, fatigue, or stress that affect focus and message processing. 2. Psychological barriers, anxiety or emotional distress that distracts and prevents proper understanding. Hello students. Welcome to Unit 3 English Language and Communication Skills. अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 नोट टेकिंग. लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस चैप्टर के बाद आप क्या सीखने वाले हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ नोट टेकिंग, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ नोट टेकिंग, especially how it helps in better learning and retention. Apply some useful tips to improve your own note-making skills. Recognize the different methods of note-taking और समझ पाएंगे किस situation में कौन सा method best होता है. And finally, you'll learn to organize and record information in an efficient way using different techniques. Now let's look at the introduction. तो नोट्स क्या होते हैं? नोट्स आर अ परमानेंट रिकॉर्ड, यानी आपका लिखा हुआ कंटेंट जो आप बनते हो फॉर सेमिनार्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और प्रेजेंटेशंस. नोट टेकिंग हेल्प्स यू फोकस बेटर ऑन व्हाट यू आर रीडिंग, वॉचिंग और लिसनिंग टू. जब आप लिखते हो तो आप ज्यादा एक्टिवली प्रोसेस करते हो इंफॉर्मेशन को, विच हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. वन मोर बेनिफिट, writing things in your own words improves your long-term memory. So आप जो लिख रहे हो वो सिर्फ याद नहीं होगा, वो समझ में भी आएगा. Active note-taking improves not only your understanding but also your ability to recall and express ideas clearly, चाहे वो एग्जाम हो, ग्रुप डिस्कशन हो या प्रेजेंटेशन. So remember, good note-taking isn't just about writing fast, it's about writing smart. Question number 1. What is note-taking? Explain its advantages and tips for note-taking. Note-taking का मतलब होता है important points को लिखना, whether it's from a lecture, meeting, presentation या seminar. It's not about writing everything. It's about writing key information that helps you understand, remember, and review later. Advantages of note-taking. So, why is note-taking important? Promotes active learning. जब आप लिख रहे होते हो, तो आप actively involved होते हो. Body और mind दोनों engaged रहते हैं. Improves focus. नोट बनाते वक्त आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो स्पीकर या कंटेंट पे. Organizes information. आप जो पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उससे लॉजिकली कनेक्ट करना इजी हो जाता है. परमानेंट रिकॉर्ड. नोट्स आप कभी भी फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हो. Enhances listening skills. जब आप सुनते हुए लिखते हो आप और बेहतर सुनना सीखते हो. टिप्स फॉर इफेक्टिव नोट टेकिंग. कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपकी नोट टेकिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे. राइट इन फ्रेजेस, नॉट फुल सेंटेंसेस. यूज योर ओन वर्ड्स टू इंक्रीज क्लैरिटी. यूज हेडिंग्स एंड सबहेडिंग्स फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर. हाईलाइट की पॉइंट्स विथ कलर्ड पेन्स.
डेट योर नोट्स ताकि आपको पता हो कब लिखा था. यूज शॉर्ट फॉर्म्स एंड सिंबल्स, सेव टाइम. लीव मार्जिन्स so you can add extra points later. Revise your notes the same day. और अगर कोई डाउट हो लिख लो ताकि बाद में पूछ सको. Methods of note taking. There are many ways to take notes. कुछ पॉपुलर मेथड्स है. Outline method. Information is written in bullet points with indentation. बहुत क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होता है. कॉर्नेल मेथड. नोट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्यूज, नोट्स एंड समरी. मैपिंग मेथड. विजुअल लर्नर्स के लिए बेस्ट. यू यूज डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स. चार्टिंग मेथड. ग्रेट फॉर कंपैरिजंस. आप टेबल्स में इन्फो लिखते हो. सेंटेंस मेथड. सिंपल लाइंस में ईच पॉइंट लिखना. अब हम बात करेंगे एक सुपर इफेक्टिव नोट टेकिंग मेथड के बारे में, द कॉर्नेल मेथड. तो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द कॉर्नेल मेथड? ये मेथड आपकी क्लास नोट्स को क्लियरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है सो दैट आप इजीली रिव्यू कर सको. इस मेथड का बेस्ट पार्ट ये है कि मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग डिटेल्स, स्टडी क्यूज और समरी सब कुछ एक ही जगह लिखा जाता है. क्या एडवांटेजेस है इस मेथड के? फर्स्ट, नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नीटली समराइज्ड और रिवीजन के टाइम बहुत इजी हो जाता है. सेकंड, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मेजर आइडियाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. व्हाट डज इट लुक लाइक? एक नॉर्मल शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लेफ्ट साइड एक 2.5 इंच मार्जिन जिसे बोलते हैं क्यू सेक्शन. मिडल में 6 इंच वाइड एरिया, ये होता है मेन नोट्स सेक्शन. बॉटम में एक 2 इंच हाइट का बॉक्स जहां होती है समरी सेक्शन. हाउ टू यूज इट? सिंपल है. फर्स्ट, जब क्लास चल रही हो, मेन नोट्स सेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. सेकेंड, क्लास के बाद क्यू सेक्शन में लिखो कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रॉम्प्ट्स जो रिवाइज करने में हेल्प करें. ये आपके स्टडी क्यूज बन जाते हैं. लास्टली, नीचे समरी सेक्शन में एक छोटी सी समरी लिखो जिसमें पूरा टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन हो. इसे आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आता है और याद भी रहता है. व्हाट इज द मैपिंग मेथड? ये मेथड एक विजुअल वे है नोट्स बनाने का. जब आपको टॉपिक्स के बीच के कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स समझने होते हैं तब ये मेथड बहुत यूजफुल होती है. क्या एडवांटेजेस है इस मेथड के? फर्स्ट, ये अन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिनको ट्रेडिशनल स्ट्रेट लाइन नोट्स बोरिंग लगते हैं. सेकंड, ये आपको कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप्स याद रखने और समझने में हेल्प करती है. व्हाट डज इट लुक लाइक? सोच लो एक पेज है, सेंटर या टॉप पर आप लिखते हो मेन टॉपिक. फिर वहां से ब्रांचेस निकलती है सब टॉपिक्स के लिए. हर सब टॉपिक के नीचे होते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स या पॉइंट्स. हाउ टू यूज इट? सबसे पहले पेज के सेंटर या टॉप पर लिखो मेन टॉपिक. अब वहां से ब्रांचेस ड्रॉ करो, हर एक के लिए सब टॉपिक लिखो. हर सब टॉपिक के नीचे ऐड करो इंपॉर्टेंट डिटेल्स. जितना जरूरत हो उतना और एक्सपैंड करो जिसे क्लियरली दिख सके कि आइडियाज एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है. अगर आप एक विजुअल लर्नर हो या किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझना चाहते हो, देन डेफिनेटली ट्राई द मैपिंग मेथड. इट्स क्लियर, क्रिएटिव एंड सुपर इफेक्टिव फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द आउटलाइनिंग मेथड? ये मेथड यूज करती है हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स ताकि टॉपिक्स क्लियरली और लॉजिकली अरेंज्ड हो सके. ये स्पेशली हेल्पफुल होती है जब आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है.
एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के? 1. नोट्स नीटली ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं, इजी टू रीड एंड रिवाइज. 2. आपको क्लियरली दिख जाता है मेन टॉपिक और सब टॉपिक्स के बीच का कनेक्शन. 3. आप बुलेट पॉइंट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो स्टडी क्वेश्चंस में, परफेक्ट फॉर रिवीजन. व्हाट डज इट लुक लाइक? हर सेक्शन एक में हेडिंग से स्टार्ट होता है. उसके नीचे सब टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा इंडेंटेड होते हैं ताकि उनका कनेक्शन क्लियरली समझ आए. हाउ टू यूज इट? स्टार्ट विद अ मेन टॉपिक, एक बुलेट पॉइंट के साथ लिखो. फिर थोड़ा इंडेंट करके लिखो सब टॉपिक्स डायरेक्टली अंडर द मेन टॉपिक. उसके नीचे और इंडेंट करके लिखो सपोर्टिंग डिटेल्स जैसे कि फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस. जब नया टॉपिक आए तो यही पैटर्न रिपीट करो. व्हाट इज द चार्टिंग मेथड? ये मेथड यूज करती है रोज एंड कॉलम्स, बिल्कुल एक चार्ट की तरह, ताकि आप इंफॉर्मेशन को क्लियरली ऑर्गेनाइज कर सको. ये स्पेशली हेल्पफुल होती है जब लेसन में होती है कंपैरिजंस, डेटा या डिटेल्ड फैक्ट्स अक्रॉस कैटेगोरीज. क्या एडवांटेजेस है इस मेथड के? 1. फैक्ट्स बहुत क्लियरली अरेंज्ड होते हैं, सो रिवीजन बिकम्स सुपर इजी. 2. आप हर कैटेगरी के की पॉइंट्स इजीली हाईलाइट कर सकते हो. 3. जब टॉपिक्स को कंपेयर करना हो, ये मेथड सबसे बेस्ट काम करती है. व्हाट डज इट लुक लाइक? पेज को डिवाइड किया जाता है कॉलम्स में. हर कॉलम के ऊपर होता है एक लेबल जैसे डेट, इवेंट, डिस्क्रिप्शन, कॉज, इफेक्ट या जो भी कैटेगोरीज हो. FIR हर रो में आप लिखते हो डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. हाउ टू यूज इट? चार्ट सेटअप करो. लेसन से पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो विथ प्रॉपर कॉलम हेडिंग्स. फिल इन इंफॉर्मेशन जैसे जैसे क्लास चलती है, हर पॉइंट को सही कॉलम के नीचे लिखते जाओ. जब नया टॉपिक स्टार्ट हो, मूव टू द नेक्स्ट रो एंड रिपीट द प्रोसेस. So if your class has lots of facts, timelines, or comparisons, the charting method is your go-to strategy, clean, quick, and super effective for analysis and review. Now what is the sentence method? इस मेथड में आप हर न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक अलग सेंटेंस या बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिखते हो. ये मेथड बेस्ट काम करती है जब क्लास फास्ट चल रही हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही हो. एडवांटेजेस क्या है? 1. आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन्हें क्लियरली लिख सकते हो. 2. आप ज्यादा डिटेल कवर कर लेते हो बिना टाइम वेस्ट किए. 3. नोट्स सिंपल होते हैं और रिवाइज करना इजी हो जाता है. What does it look like? हर नया पॉइंट या थॉट एक नई लाइन में लिखा जाता है. आप चाहो तो बीच में हेडिंग्स ऐड कर सकते हो ताकि नोट्स ऑर्गेनाइज्ड रहे टॉपिक वाइज. हाउ टू यूज इट? जब टीचर कोई इंपॉर्टेंट इन्फो बताए, उससे ट्यूरेंट लिखो, चाहे फुल सेंटेंस में या शॉर्ट बुलेट फॉर्म में. हर नई आइडिया के लिए नई लाइन यूज करो, क्लियर और सिंपल. अगर पॉसिबल हो तो हेडिंग्स ऐड करो फॉर ईच मेन टॉपिक. दिस कीप्स योर नोट्स क्लीन एंड इजी टू रिवाइज. सो गाइस, जब क्लास स्पीड में हो और आपको क्विकली सब कुछ कैप्चर करना हो, द सेंटेंस मेथड इज योर बेस्ट बडी, फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड फस फ्री. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. What do you mean by note taking? Answer: it is the process of writing down or recording the key points of information. Question number 2. Mention any 2 tips for note-taking skill. Answer: I. Note-taking must be clear and concise. 2. It must be according to the subject matter. Question number 3. Write an advantage of note-taking. Answer: note-taking keeps you active,
and aware of what's happening around you. Question number 4. Write a note on mapping method. Answer. The mapping method is a visual way to organize class notes. It helps in learning the relationships between topics. Question number 5. Write advantages of sentence method. Answer. I. Helps identify important information. 2. Covers many details quickly. Practice questions. Write the concept of note-taking. Explain a few tips for note-taking. Write an advantage of note-taking. Explain methods of note-taking in brief. Explain the outlining method of note-taking. Please recognize our efforts by just subscribing our Pinde Punjab YouTube channel.